शांति। ओम शांति। ओम शांति। 19th अगस्त 2025। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, अपने स्वधर्म को भूलना ही अपने स्वधर्म को भूलना ही सबसे बड़ी भूल है। अभी तुम्हें अभूल बनना है। अपने घर और राज्यों को याद करना है। प्रश्न है, आप बच्चों की कौन सी अवस्था है समय की समीपता की निशानी है? उत्तर, आप बच्चे जब याद की यात्रा में सदा मस्त रहेंगे, बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। वाणी में याद का जौहर आ जाएगा। वाणी में याद का जौहर आ जाएगा। अपार खुशी में रहेंगे। घड़ी घड़ी अपनी सतयुगी दुनिया के नजारे घड़ी घड़ी अपनी सतयुगी दुनिया के नजारे सामने आते रहेंगे। तब समझो समय समीप है। विनाश में टाइम नहीं लगता। विनाश में टाइम नहीं लगता। इसके लिए याद का चार्ट बढ़ाना है।
और आज का गीत है तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमे तो जमे आसमां पा लिया। তো আজকে বাবা মহাবাক্যতে বলেছে যে নিজের স্বধর্মকে আমরা ভুলে গেছি, তাই না? এটাই হলো আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল। মানে আমরা নিজেকে দেহ ভাবতে শুরু করি, আত্মা অনুভব করি না, আত্ম অনুভূতি আমাদের নেই। আর তাই জন্য আমরা বাহ্যিক রূপে কবিরা গায়করা গান বানিয়েছে যে ভুল সবই ভুল, জীবনের পাতায় পাতায় সবই ভুল। অ্যাকচুয়ালি গানটার আধ্যাত্মিক রহস্য হলো যে এটা বাহ্যিক রূপে ভুল দেখিয়েছে, কিন্তু বাবা বলছে কি সবচেয়ে বড় ভুল হলো যে আমরা নিজেকে নিজের স্বধর্ম থেকে আমরা সরে গেছি। তার জন্য বাবা বলছে এবার এই ভুলকে নির্ভুল বা অভুল বানানোর জন্য বাবা এসেছে। তো বাবা এবার বলছে যে তুমি তোমার ঘরকে এবং রাজ্যকে ইয়াদ করো, পরম ধামকে ইয়াদ করবো আর সত্যযুগকে ইয়াদ করব। আজকে প্রশ্নতে বাবা বলেছে যে বাচ্চাদের কোন অবস্থা আসলে পরে সময়ের সমীপতার লক্ষণ দেখতে পারবো, মানে কি রকম সিচুয়েশন আমাদের মধ্যে আসলে পরে বা কিরকম একটা কি এমন একটা আসলে পরে অবস্থা যেটা দিয়ে বাবা বুঝতে পারবে যে এবার বিনাশ হবে, মানে আমরা সবাই সম্পূর্ণ কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো এই অবস্থাটা কি? উত্তরে বলেছে যখন আমরা বাবার বাচ্চারা ইয়াদের যাত্রাতে কি হয়ে যাব, পাক্কা হয়ে যাব, বুদ্ধি কখনো এখানে সেখানে দৌড়াবে না। যখন এখন তো যোগ করতে বসলে কি হয়, এখানে সেখানে দৌড়তে থাকে, ঠিক না? এটা যখন বন্ধ হয়ে যাবে এবং আমাদের বলের মধ্যে কথার মধ্যে যখন ধার চলে আসবে, মানে যত যোগ করব তত কি হবে, আমাদের কথা আমাদের ভীষণ ধার হবে। মানে এরকম না যে দুঃখদায়ী কথা বলবো, মানে দাদিরা যেরকম কথা বলে তখন কি হয়, তারা অত কথা বলে না কিন্তু শর্ট এন্ড সুইট, তো ওই রকম হবে। তো আমাদের অবস্থা শুধু অপার খুশি থাকবো। তো বাবা বলতে যে ঘড়ি ঘড়ি আপনি সত্যযুগী, তখন আমাদের সামনে বারবার আমাদের চোখের সামনে এটাই ভাসবে যে এখন নতুন সত্যযুগ, নতুন দুনিয়া আসছে। তো বাবা বলছে যে তখনই বাবা বুঝবে যে এখন সময় শেষ হওয়ার পথে। তো বিনাশ করতে বাবার সময় লাগবে না। তো জানো বাবা বলছে যে তার জন্য ইয়াদের চাট রাখতে হবে, কারণ আমরা জ্ঞানে তো সবাই পাকা কিন্তু ইয়াদে আমরা কাঁচা, তার জন্য ইয়াদের চাট আমাদেরকে বাবাকে দিতে হবে। আর আজকের গীতে আমরা বাবাকে কি বলেছি, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी क्या आसमां मिल गया। ओम शांति। रूहानी बच्चे इस गीत का अर्थ तो समझते होंगे ना? এটা তো ছিল ফিল্মি সং, তো এই গানটার আধ্যাত্মিক অর্থ তো আমরা বুঝি, তাই না? বাবাকে পাওয়ার পর আর কিছু পাওয়ার ইচ্ছা আছে? আর তো কিছু চাই না। अब बेहद के बाप को तो पा लिया ना, बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है, जिस वर्षे को कोई भी छीन नहीं सकता। वर्षे का नशा तब चला जाता है जब रावण राज्य शुरू होता है। रावण राज्य कब से शुरू होता है? यह भी ड्रामा बना हुआ है। बच्चों को सृष्टि ड्रामा का भी ज्ञान है। यह चक्र कैसे फिरता है, इनको नाटक भी कहे व ड्रामा भी कहे, बच्चे समझते हैं बराबर। बाप आकर सृष्टि का चक्र भी समझाते हैं। जो ब्राह्मण कुल के हैं उन्हों को ही समझाते। बाबा कादर के বোঝাবে যারা দেবাত্মা হবে তাদেরকে বাবা
বোঝাবে, না হলে তো মেলা করে অত লোক, অত আত্মা মেলা ঘরে, কিন্তু এখানে গণা কয়েকজন, ঠিক না? কেন? কারণ সবাই তো সত্য যুগে যাবে না, সবাই তো দেবতা হবে না, সবাই দেবতা হলে অসুর কে থাকবে, ঠিক না? সবাই পুণ্য কাজ করলে পাপ কে করবে? তার জন্য বাবা বলছে যে যারা ব্রাহ্মণ কুলের হবে তাদেরকে এখানে বাবা आनबे। बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तो तुमको समझाता हूँ। पहले तुम सुनते थे, क्या सुनते थे? अपने जन्मों के लेकर, আমাদের নিজের জন্মকে নিয়ে আমরা কি শুনতাম? 84 লক্ষ, তারপর কি ভ্রমণ করে মানব জীবন মা একটা মাত্র, ঠিক না? तो बाबा की बोले 84 लाख जन्म लेने बाद फिर एक जन्म मनुष्य को मिलता है। होता है ऐसा क्या? होता नहीं बानी माता जी, হয় কি 84 লক্ষ বার জন্ম করে পশু পাখি কীট পতঙ্গ হয়ে লাস্টের জন্মটা হলো মানুষ রূপে, হয় কি? কি? হ্যাঁ হ্যাঁ, দাঁড়ান দাঁড়ান, বলেন কি? মানুষের গর্ভে মানুষ হয়, কে কইছে? तो तुम बच्चे तुम जानते हो अपने जन्मों को नहीं जानते थे, মানে আমরা বাবার জ্ঞান পাওয়ার আগে নিজের জন্মটাকে আমরা जानताम ना। तो ऐसे तो नहीं है ना, अभी तो सब आत्माएं नंबरवार आती जाती हो, बुद्धि में आया है। पहले पहले हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने हैं। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, यह भी गायन है। मनुष्य फिर भगवान के लिए समझते हैं कि आप ही पूज्य, आप ही पुजारी बनते हैं। आपको ही यह सब रूप है, अनेक मत मतांतर है ना। तुम अभी श्रीमत पर चलते हो। अभी हम कैसे किस मत पर चलते हैं? ना खिचड़ी मते चलिए, নিজের মত, শ্রীমত, পরমত সব কিছুকে খিচুড়ি বানিয়ে তারপর চলে। কি অবমাতাজি হয়ে চলি আমরা, না একটা মতো চলি? কোনটা? तो अभी हम श्रीमत पर चलते। तो समझते हो हम स्टूडेंट पहले तो कुछ नहीं जानते थे, फिर पढ़कर उस इम्तिहान पास करते जाते हैं। वह स्टूडेंट भी शुरू में तो कुछ भी नहीं जानते, फिर इम्तिहान पास करते करते समझते हैं कि अभी हमने वेडिस्टरी पास कर ली है। तुम भी सब जानते हो हम पढ़कर मनुष्यों से देवता बन रहे हैं, सो भी विश्व के मालिक। যেদিন আমরা প্রথম কোর্স করি সেদিন কি আমরা জানতাম যে এত কিছু আমরা জানবো, অত কিছু বুঝবো? জানতাম না। তো বাবাও বলতে যখন কোনো স্টুডেন্ট বাচ্চা স্কুলে অ্যাডমিট হয়, নার্সারিতে পড়ে, সে জানে না সে বড় হয়ে কি হবে, সে জানে না তার আগামী দিনে পরীক্ষাগুলি কি আসতে চলেছে। তো যখন সে পরীক্ষায় এক একটা পরীক্ষায় পাশ হতে থাকে তখন সে একটু একটু করে বড় হতে থাকে, একটু একটু করে তার পদও বড় হতে থাকে। তো বাবা বলছে যে তোমরা তোমাদের জীবনের পরীক্ষাগুলি পাশ করে 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 এখন তোমরা মানুষ থেকে देवता হচ্ছ এবং বিশ্বের मालिक। तो वहाँ तो है ही एक धर्म, एक राज्य, और क्या क्या है सतयुग में? और हाँ, एक धर्म और तो वहाँ तो एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक मत, और क्या? और कुछ भी नहीं। तुम्हारा राज्य कोई छीन ना सके। সত্য যুগে রাজ্য আমাদের থেকেও ছিনিয়ে নিতে পারবে না। এখন যদি কেউ পোস্ট পজিশনে একটু উঁচা থাকে তাকে কি করে নিচে নামানো যায় সেটাই লোকের ধান্দা, কিন্তু সত্য যুগে এরকম হবে না কিছুই। वहाँ तुमको पवित्रता, शांति, सुख, संपत्ति सब कुछ है। गीत में भी सुनाना। अब यह गीत तुमने तो नहीं बनाए,
अनायास ही ड्रामा अनुसार इस समय के लिए यह बने हुए है। मनुष्य के बनाए हुए गीतों का अर्थ बाप वेद समझाते हैं। अभी तो यहाँ शांति में बैठ बाप से वर्षा ले रहे हो। अभी हम कैसे बैठे हैं सभी? शांति में बैठे हैं। और क्या कर रहे हैं शांति में बैठ के? और মাঝে মাঝে এখানে কি অশান্তিতে বসে আছেন? বসেননি তো, এখন বসে কি করছেন? বাবার ইয়াদ করতেছেন? কই কি ইশারার ভাষায় কথা বলে? বাবা কি বলেছে? अनायास ड्रामा अनुसार समय के लिए बना हुआ है। अभी तुम शांति में बैठ बाप से वर्षा ले रहे हो। जो कोई छीन न सके आधा कल्प सुख का वर्षा रहता है। बाप समझाते हैं। क्या समझाते? बाप क्या समझाते बताओ? आर की बुझाए? आर की बुझाए? मीठे मीठे बच्चों, আমরা मीठा मीठा बच्चे बाबा की मग मीठा मीठा बच्चा। तो बाप समझाते मीठे मीठे बच्चों, आधा कल्प से भी जास्ती तुम सुख भोगते हो। फिर रावण राज्य शुरू होता है। मंदिर में भी ऐसे है, जहाँ चित्र दिखाते देवताएं वाम मार्ग में कैसे जाते हैं। जैसे ड्रेस तो वही है, जैसे उड़ीसा में जो भी मंदिर है, जो भी देवता वहाँ है मंदिर में, সেখানে দেবতাগুলিকে এরকম খারাপ খারাপ চিত্রওয়ালা দেখানো হয়েছে, নেকেড ড্রেসে দেখানো হয়েছে। তো বাবা বলছে যে দেবতারা যখন বাম মার্গে চলে যায় তখন তাদের এরকম অবস্থা হয়ে যায়, মানে আত্মা যখন পতিত হয়ে যায় ওই রূপটা ওখানে দেখানো হয়েছে বাহ্যিক রূপে। तो ड्रेस बाद में बदलती है। हर एक राजा की अपनी अपनी ड्रेस, ताज आदि सब अलग अलग होते हैं। अब बच्चे जानते हैं हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा वर्षा ले रहे हैं। बाप तो बच्चे बच्चे ही कहेंगे ना, আমরা কি বুড়া না বাচ্চা? কি এখানে কি আমরা 50 বছর 60 বছর 70 বছরে বুড়া? মা গো কি বুড়া? তো বাবা কি বলছে, তুমি তো আমার বাচ্চাই, ঠিক না? সন্তান যতই বড় হোক না কেন মা বাবার কাছে তো ছোট্ট। তো বাবা বলছে যে बाप तो बच्चे बच्चे ही कहते हैं। बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते थे। सुनती तो आत्मा है ना या शरीर? कौन सुनता है? आत्मा सुने बुद्धि? आत्मा सुने? आत्मा न कि शरीर? पूछा के सुने? है आत्मा ए ऑर्गन्स द्वारा सुने। और जो भी मनुष्य मात्र है उन्हों को अपने शरीर के नाम का नशा है, क्योंकि वो तो देह अभिमानी है। हम क्या है? हम आत्मा है, यह तो जानते ही नहीं है। वो तो आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा कह देते हैं। अभी तुमको बाप ने समझाया है, तुम आत्मा सो विश्व के मालिक देवी देवता बन रहे हो। यह ज्ञान अभी है। हम सो देवता फिर क्या बनेंगे? ब्राह्मण से क्या बनेंगे? মানে ব্রাহ্মণ থেকে ক্ষত্রিয় হওয়ার পুরুষার্থ, ব্রাহ্মণ থেকে ফরিস্তা, ফরিস্তা থেকে দেবতা, তারপর দেবতা থেকে देवता सो क्षत्रिय, क्षत्रिय सो वैश्य, वैश्य सो शूद्र, शूद्र सो फिर ब्राह्मण। तो 84 जन्मों का हिसाब भी चाहिए ना। सब तो 84 जन्म लेंगे? नहीं लेंगे। सब इकट्ठे थोड़ी आ जाते हैं। तुम जानते हो कौन से धर्म कैसे आते रहते हैं।
हिस्ट्री पुरानी फिर नई होती है। अभी यहाँ है पतित दुनिया, वो है पावन दुनिया। फिर दूसरे दूसरे धर्म आते हैं। यहाँ कर्म क्षेत्र पर यह एक ही नाटक चलता है। मुख्य है 4 धर्म। इस संगम पर बाप आकर ब्राह्मण संप्रदाय स्थापन करते हैं, विराट रूप का चित्र बनाते हैं, परंतु उसमें यह भूल है। क्या भूल है विराट रूप के चित्र में? पता है भूल क्या है? विश्वरूपे चित्र मध्य कृष्ण के विश्वरूप साक्षात्कार করিয়েছিল কৃষ্ণের মধ্যে, তো ওটার মধ্যে দেখিয়েছে যে একটা ভুল দেখানো আছে চিত্রটার মধ্যে। কি ভুল আছে? আরেকবার মুলিতবা বলেছে সেই ভুলটা। দেবতাদেরকে মুখে দেখিয়েছে, ক্ষত্রিয়কে বুকে দেখিয়েছে, বৈশ্যকে পেটে, শূদ্রকে পায়ে, কিন্তু এই দেবতা কি করে হয়েছে সেটাকে তারা দেখায়নি। तो बाबा बोलते এটাই হলো भूल, এটাকে करेक्शन करते बोलते। तो परंतु उसमें ये भूल है, बाप आकर सब बातें समझाए, क्या बनाते हमें? अभूल बनाते हैं। बाप तो ना कभी शरीर में आते हैं ना भूल करते हैं, वो तो थोड़ी समय के लिए आते हैं। तुम बच्चे भूल करते हो, हम क्या करते? বাবা হলো ক্ষমার সাগর, আমরা হলাম ভুলের সাগর। আমরা ভুল করব, আর একটা ভুল আর এসে হত্যা দিয়ে পড়বো, পরে বাবা ভুল হয়ে গেছে, এবার আমাকে ক্ষমা করে দাও। তো বাবা হচ্ছে এরকম করলে চলবে? तो अपने घर का रास्ता बताने के लिए इनके रथ में आते हैं। न सिर्फ रास्ता बताते हैं परंतु लाइफ भी बनाते हैं, ठीक ना? শুধু তো বাবা রাস্তা বলে দিয়ে যায় না, আমাদেরকে সাথে করে সাথীও করে নিয়ে যায়, তো আমাদের জীবনটাকে সুন্দর করে দিয়ে যায়। तो कल्प कल्प तुम घर जाते हो, फिर सुख का पाठ भी बजाते हो, बच्चों को भूल गया है। हम आत्माओं का स्वधर्म क्या है? বাণী মাঝে বলেন পরম দেখাকে করতে পারবো, পড়েন না গীতা তোপাস তোপাস কইরা না এদিকে আইল, হ্যাঁ এরকম করে থাকে। तो हम आत्माएं अपने को स्वधर्म में क्या है? हमारा स्वधर्म क्या है? शांति। तो इस दुख की दुनिया में शांति कैसे होगा? पूछते हैं ना बाबा को कि এত দুঃখের দুনিয়া, এই দুঃখের দুনিয়ার মধ্যে কি করে শান্তিতে থাকবো বাবা, তুমিই বলো। তো বাবা কি বলছে? इन सब बातों को तुम समझ गए हो, কি করে থাকা যায় সেটা বাবা আমাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছেন। তাহলে तुम सबको समझाते भी हो যে কি করে শান্তিতে থাকা যায় এই দুঃখের দুনিয়ার মধ্যে, অশান্তির দুনিয়ার মধ্যে, সেটা আমরা থাকি এবং অন্যকে রাখতে শেখায়। তো आहिस्ते आहिस्ते सब आते जाएंगे, कहा বাবা বলছে ধীরে ধীরে সব আসতে থাকবে। কোথায়? এটাই তো লাস্ট জায়গা, ঠিক না? লাস্ট ঠিকানাটা তো এটাই। তো আসতে তো এখানেই হবেই হবে, তার জন্য বলছে आहिस्ते आहिस्ते सब आते जाएंगे, विलायत वालों को भी मालूम पड़ेगा यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, इनकी आयु कितनी है। फॉरेनर्स भी तुम्हारे पास आएंगे, वह बच्चे वहां जाकर सृष्टि चक्र का राज समझाएंगे। वो समझते कि क्राइस्ट गॉड के पास जाए पहुंचा। क्राइस्ट को गॉड का बच्चा समझते हैं। कोई फिर यह समझते हैं कि क्राइस्ट भी पुनर्जन्म लेते लेते अभी बेगर है ना? बेगर वो क्राइस्ट तो जन्म নিতে নিতে এখন গরিবের পার্ট बजाচ্ছে। जैसे तुम भी बेगर हो ना। बेगर अर्थात क्या है? हाँ, बेगर अर्थात तम प्रधान। समझते हैं क्राइस्ट भी यहाँ है, फिर कब आएंगे यह नहीं जानते। तुम समझा सकते हो तुम्हारा धर्म स्थापक फिर अपने समय पर धर्म स्थापन करने आएगा। उनको गुरु नहीं कह सकते, वो धर्म स्थापन करने आते। सद्गति दाता सिर्फ एक है, वो जो भी
धर्म स्थापन करने आते हैं, सब पुनर्जन्म लेते लेते अभी आकर तम प्रधान बने हैं। যারাই ধর্ম স্থাপন করে গেছে তারা আজকে কি পুনর্জন্ম নিতে নিতে পতিত তম প্রধান হয়ে গেছে। আমাদের মধ্যে কোথায় না কোথাও ওরা আছে। अंत में सारा जड़ झरझरी बुत अवस्था को पा लिया है। अभी तुम जानती हो सारा झाड़ खड़ा है, बाकी देवी देवता धर्म का फाउंडेशन नहीं है, बड़का मिसाल है। यह बातें बाप ही बच्चों को समझाते हैं। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए, तुमको मालूम पड़ा है हम क्या बनेंगे। বাবা বলছে তোমাদের তো খুব খুশি হওয়া উচিত। কেন? কি আপনারা কি দেবতা হইবেন? তো দেবী না বলবেন, তো দেবতা বলেন কেন? तो बोलते थे हम सो देवी देवता बनेंगे, फिर अब बनते हैं। यहाँ तुम आते ही हो, क्यों आते हैं रोज रोज सुबह? दुरुटी विरक्त सत्य ना। तो बाबा से तुम यहाँ आते हो सत्यनारायण की कथा सुनने, जिससे नर से नारायण बनेंगे। नारायण बनेंगे तो जरूर क्या चाहिए? कितना कितना लगभग नारायण बनेंगे तो जरूर लक्ष्मी भी होगी। लक्ष्मी नारायण होंगे तो जरूर उन्हों की राजधानी भी होगी। ठीक है ना? नारायण होगा तो लक्ष्मी होगा, लक्ष्मी होगा क्या होगा? लक्ष्मी नारायण दोनों होगा, तब तो राज्य भी चाहिए। तो लक्ष्मी तो अकेला लक्ष्मी नारायण तो नहीं बनेंगे ना। लक्ष्मी बनने की अलग कथा थोड़ी है। ऐसा होता है क्या? ये ना लक्ष्मी नारायण हवार एटाई कारखाना। तो नारायण के साथ लक्ष्मी भी बनती है, लक्ष्मी भी कभी नारायण बनती है, नारायण फिर कभी। तो कोई कोई गीत बहुत अच्छे हैं, माया के घुटकी आने पर गीत सुनने से हर्षितपना आ जाएगा। যখন যখন আমাদের মন খারাপ হয় না, কারণ মানুষ তো আমরা প্রত্যেকে একদম তো আমরা পাক্কা হয়ে যাইনি, তো যখন কখনো কখনো এরকম মুড একটু অফ হয়েও যায় বা কিছু একটা হলে পরেও, তো বাবা বলছে কি তখন তখন তুমি কি শোনো? গান শোনো। গান শুনলে পরে কি হবে? मूड फ्रेश हो जाएगा। तो बाबा से हर्षितपना आ जाएगा। जैसे तैरना सीखना होता है तो पहले घुटके आते हैं, फिर उनको पकड़ लेते हैं। यहाँ भी माया के घुटके तो बहुत खाते हैं, तैरने वाले तो बहुत होते हैं, उनको ही भी रेस होती है, तुम्हारी भी रेस होती है उस पार जाने की। मामे को याद करना है, याद नहीं करते तो गुटखा खाते हो। बाप कहते हैं याद की यात्रा से ही क्या होगा? याद करेंगे तो क्या होगा? और प्योरिटी आसबे। आज याद की यात्रा से ही बेड़ा पार होगा। तुम उस पार चले जाएंगे। किस पार? उस पार किस पार? वही किता। तो बाप कहते हैं तैराक कोई बहुत तीखे होते हैं, कोई कम। यहाँ भी ऐसे है। मैं जो स्विमिंग करे ना যারা, তো সাঁতারু যারা, তাদের মধ্যে কেউ ভীষণ স্পিডি আছে, আবার কেউ একটু লেজি আছে। তো বাবা বলছে যে আমরা এখন সাঁতারু সবাই, তো এই পার থেকে আমরা এই বিষয় বৈতরণী থেকে নদী থেকে ক্ষীর সাগরে যাব। তো এখন আমাদের মধ্যে রেস চলছে কে কার আগে পৌঁছতে পারে, কিন্তু তার মধ্যে যাদের পুরুষার্থ একটু কম তাদের মানে কি সাঁতারুটা লেজি, আর যাদের পুরুষার্থ বেশি ফার্স্ট স্পিড বেশি। তো বাবা সেটাই বলছে कोई
कम है कोई तीखा है। यहाँ भी तो ऐसे है, बाबा के पास चार्ट भेज देते हैं, बाबा जांच करते हैं याद के चार्ट को, यह राइट रीति समझते हैं या रंग समझते हैं। कोई कोई दिखाते हैं, क्या दिखाते बाबा को? बाबा बोलते थे क्यों क्यों আমাকে দেখায়, কি দেখায়? हम सारे दिन में 5 घंटा याद में रहा। हम विश्वास नहीं करते, जरूर भूल हुई है। कोई समझते हैं हम जितना समय यहाँ पढ़ते हैं उतना समय तो चार्ट ठीक रहता है, परंतु नहीं। কেউ কেউ ভাবে এটা যে আমরা যতক্ষণ ক্লাসে থাকি না ততক্ষণ আমাদের চার্ট ঠিক থাকে, মিন্স আমরা ইয়াদ করি। কিন্তু বাবা বলছে যে তখনও তুমি ইয়াদে থাকতে পারো না। কেন থাকতে পারি না? তখনও কিন্তু মন আমাদের এখানে সেখানে, মৌলিক ক্লাসের টাইমে কিন্তু মন এখানে সেখানে দৌড়তে থাকে। তার জন্য মাঝে মাঝে বাবা প্রশ্ন করে যাতে গেলে পরেও কোথাও মন আবার কি করে ফিরে আসে। আর যারা যায় না, যাদের মন যায় না, তারা কি করে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিতে পারে। আর যারা চলে যায় তারা কি করবে? হ্যাঁ, এরকম করে তাকিয়ে থাকবে। परंतु वहाँ बहुत है, यहाँ बैठी हुई भी सुनती हुई भी बुद्धि পেটাত্মা ভূতত্বার মতো কি করতে থাকে? এখানে সেখানে भागते থাকে। तो बाहर में कहाँ कहाँ चली जाती है, पूरा सुनते भी नहीं। पूरा मुरली বসে থাকে ঠিকই, বডিটা এখানেই থাকে, কিন্তু ওখানে সেখানে সে घूरते থাকে। भक्ति मार्ग में भी ऐसा होता है। सन्यासी लोग सुनाते हैं, फिर बीच बीच में पूछते हैं। क्या पूछते? हमने क्या सुनाया? ঠিক না, যারা প্রবচন করে ভক্তি তো দেখা যায়, তখন গুরু কি করে, সন্ন্যাসীরা কি বলে, প্রশ্ন করে না মাঝে মাঝে, কি বলেছি আবার বলুন তো। তো বাবা বলছে তখন কেউ কেউ বলতে পারে, আবার কেউ কেউ হা হয়ে তাকিয়ে থাকে। देखते हैं ये तवाई हो बैठा है तो पूछते हैं फिर बता नहीं सकते। तो बुद्धि कहाँ ना कहाँ चली जाती है, एक अक्षर भी नहीं सुनते हैं। यहाँ भी ऐसे है, बाबा देखते रहते हैं, समझा जाता है इनकी बुद्धि कहाँ बाहर भटकती रहती है, इधर उधर देखते रहते हैं। देखना है इधर उधर क्या चल रहा है, आगे कौन है, पीछे कौन है, साइड में कौन है, क्या हो रहा है, देखना है हमें। इधर उधर नहीं देखना है। ऐसे ऐसे भी कोई कोई नए आते हैं, बाबा समझ जाते हैं, पूरा समझा नहीं है, इसीलिए बाबा कहते नए नए को जल्दी यहाँ क्लास में आने की छुट्टी ना दो, नहीं तो वायुमंडल को बिगाड़ते हैं। आगे चल तुम देखेंगे जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं होंगे यहाँ बैठे बैठे वैकुंठ में चले जाएंगे, बहुत खुशी हो रहेगी, घड़ी घड़ी चले जाएंगे। अभी टाइम नजदीक है, যতটা সময় ঘনিয়ে আসবে সত্যযুগের তত মানে আমরা যত আমরা কাছাকাছি যাব, আমরা যত স্থিতি পাক্কা হবে তত আমরা খালি সত্যযুগের সাক্ষাৎকার আমরা করতে থাকবো, তত গুড ফিলিং আমরা একটা করতে পারবো। तो जो कुछ बताना करना होगा उनको साक्षात्कार होता रहेगा। समय तो देख रहे हो कैसे कैसे तैयारियां हो रहा है। बाप कहते हैं देखना कैसे एक सेकंड में दुनिया के मनुष्य खाक में मिल जाएगा। बाबा की बोलছে তুমি শুধু দেখবে एक सेकंडेर মধ্যে কি খেলা হয়ে যায়। तो बोम लगाया यो खलास हुए है। तुम बच्चे जानते हो अभी अपनी राजा स्थापन हो रही है, अभी तो याद की यात्रा में क्या करना है, कैसे रहना है। आज बताया, आज मुरली में बताया कैसे रहना है याद की यात्रा में। आज हाँ आज याद की यात्रा में
डैश रहना है, क्या रहना है? और रहना है, हाँ, मस्त रहना है। वो जहर भरना है जो कोई को भी दृष्टि से तिर लग जाए। पिछाड़ी में भीष्मो पितामह आदि जैसे को तुमने ही तो ज्ञान के बाण मारे हैं। जैसे भीष्म पिता को किसने मारा? शिखंडी। वो कौन था? कुमारी था ना। तो बाबा ने कहा, कुमारी नहीं था, आप थे। तो बाबा ने कहा कि जो ऐसे है भीष्म पितामह की तरह, जैसे वो इगोइस्टिक पर्सन होता है ना, उसको हमारी जैसे कुमारी माताएं वो ज्ञान के बाण से उसको जो उसका अहंकार है उसको वध करेगा। झट समझ जाएंगे। हो तो सत्य कहते हैं। ज्ञान का सागर पतित पावन तो निराकार भगवान है। श्री कृष्ण है क्या? है क्या? है कौन है? उनका तो जन्म दिखाते हैं। श्री कृष्ण के वही फीचर्स फिर कभी मिल न सके। सत्ययुग में वही फीचर्स मिलेंगे। हर एक जन्म में हर एक के फीचर्स अलग अलग होते हैं। यह ड्रामा का पार्ट ऐसा बना हुआ है। वहाँ तो नेचुरल क्या होता है? क्या होता है? हाँ, আর কিছু ন্যাচারাল বিউটিফুল ফিচার্স হতে হ্যাঁ। ওখানে আর পার্লার থাকবে না, জেন্টস পার্লারও থাকবে না, লেডিস পার্লারও থাকবে না, বুঝেছেন? সেখানে ন্যাচারাল বিউটিফুল ফিচার্স होंगे। अब तो दिन प्रतिदिन तन भी तम प्रधान होते जाते। যত মানে শরীর ওল্ড হতে থাকে, বয়স হতে থাকে, যত শরীরের বয়স বাড়তে থাকে তত কি হতে থাকে শরীরের মধ্যে? তখনে এটাকে মেরামত করতে লাগে, ঠিক না? এটা ভাঙাচোরা ঘরের মতো হয়ে যায়। তো বাবা বলছে যে दिन प्रतिदिन तन भी तो तम प्रधान होते जाते हैं। पहले पहले सत्य प्रधान, फिर सत्व रजो तमो, फिर तम प्रधान। यहाँ तो देखो कैसे कैसे बच्चे जन्म लेते हैं। कोई की टांग नहीं चलते, कोई जमराड़ी होते हैं। मीन्स এরকম দেখা যায় না যে জমজ হয় কিন্তু দুটোটা বডি একসাথে জয়েন্ট থাকে, এরকম অনেক দেখা যায় এরকম। তো বাবা বলছে যে তখন এরকম হয়, ডক্টররা অপারেশন করে দেখা যায় যে একজন মারা যায় আর একজন বেঁচে যায়। তো বাবা বলছে যে এরকম তো প্রধান দুনিয়ার মধ্যে এরকম বাচ্চা জন্ম হয়। क्या क्या हो जाता है सतयुग में? ऐसे थोड़ी होता है। वहां तो देवताओं का ढेश नहीं होगा। क्या नहीं होगा पता है? नहीं হ্যাঁ, আর क्या नहीं होगा? এখন আবার শুনছি, মানে আমি এটা শুনিনি কখনো, খুব ভালো লাগবে শুনলে পরে। বলুন তো সত্যযুগে দেবতাদের এটা থাকবে না? মিন্স দেবতাদের থাকবে না, দেবীরা নয়, দেবতাদের কি থাকবে না? क्या नहीं? हाँ, तो देवताओं आदि की दाढ़ी आदि भी नहीं रहेगा। तो है किसी का भी नहीं है ना। तो बाबा ने कहा मैन चेन से मालूम पड़ता है यह मेल है या फीमेल है। आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, है ना? खुशी है सुदीप भाई जी? क्यों? दाढ़ी नहीं रहेगा, शेप नहीं करना पड़ेगा, इसकी क्या खुशी? तो आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। बाबा कल्प कल्प आकर हमको राज योग सिखलाए। क्या बनाते? और क्या बनाते? मनुष्य से देवता बनाते। यह भी तुम बच्चे जानते हो कि और जो भी धर्म वाले हैं
सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। आत्माओं की झाड़ दिखाते हैं ना, चित्रों में बहुत करेक्शन करते बदलते जाएंगे। जैसे बाबा सूक्ष्म बतन के लिए समझाते हैं, संशय बुद्धि तो कहेंगे ये क्या है, आगे यो कहते थे अभी यो कहते हैं। लक्ष्मी नारायण के दो रूप को मिलाकर क्या होते हैं, विष्णु कहलाते हैं। बाकी 4 भुजा वाला मनुष्य थोड़ी होता है। रावण के 10 शीशा दिखाते हैं, ऐसे कोई मनुष्य होते नहीं। हर वर्ष बेट जलाते हैं, जैसे गुड़ियों का खेल है। रावण मरता है। रावण कय माथा बाणी माता जी, वो माँ गो सबाई जाने। तो रावण के 10 शीशे दिखाते हैं। तो रावण के तो प्रत्येक बच्चों की करे हैं, तो रावण के येते दशहराते चालिए থাকে ঠিক না। তো রাবণ কি মরে না, মানে প্রত্যেক বছর 1 ফুট করে রাবণকে বাড়ায়, মানে প্রত্যেকটা মিনিটে মিনিটে আমাদের মধ্যে একটু একটু করে রাবণ বাড়তে থাকে। আর রাবণকে এটা বাহ্যিক রূপে আমরা দেখিয়েছি, রাবণ प्रत्येक बছর बाढ़े। तो हर वर्ष बेट जलाते हैं। मनुष्य कहते हैं शास्त्रों बिगर हम जी नहीं सकते। शास्त्र तो हमारे प्राण है। गीता को देखो, मान कितना है। यहाँ तो तुम्हारे पास क्या है, हमारे पास क्या है जो मान देने वाला, सम्मान देने वाला। দুনিয়ার কাছে তো শাস্ত্র হলো তাদের প্রাণ, তাদের জীবন, সবকিছু। গীতা আর আমাদের কাছে मुरली। यहाँ तुम्हारे पास मुरलियों का ढेर इकट्ठा हो जाता है। तुम रखकर क्या करेंगे, मुरलीগুলোকে স্টক করে কি করব? हाँ, और এগুলো স্টক করে ফাইলে স্টক করে কোনো লাভ আছে? এই পেপারসগুলিকে, এই মুরলিগুলিকে, তো এইগুলিকে কেন নদীতে ভাসিয়ে দেবে এখন? হ্যাঁ, এখানে তো 25 বছর ধরে মুরলিগুলি স্টক হচ্ছে, তাহলে কতগুলি ফাইল হতে পারে চিন্তা করুন। এখন এগুলি কি করব? तुम रख कर क्या करेंगे, दिन प्रतिदिन तुम नए नए पॉइंट्स सुनते रहते हो। हाँ, पॉइंट्स तो नोट करना अच्छा है। भाषण करते समय रिहर्सल करेंगे, यहाँ यह पॉइंट्स समझाएंगे। टॉपिक की लिस्ट होनी चाहिए। आज इस टॉपिक पर समझाएंगे रावण कौन है, राम कौन है। कौन है पता है? पता नहीं है रावण कौन है, राम कौन है? हाँ, तो सच क्या है वो हम आपको बताते हैं। इस समय रावण राज्य सारी दुनिया में है। 5 विकार तो सब में है, और इस 5 विकार जब हमसे दूर होगा तब हम बन जाएंगे राम। तो बाप आकर फिर राम राज्यों की स्थापना करते हैं। यहाँ हार और जीत का खेल है। हार कैसे होती है? 5 विकार रूपी रावण से। आगे पवित्र गृहस्थ आश्रम था, तो सो अब पतित बन गए हैं। लक्ष्मी नारायण सो फिर ब्रह्मा सरस्वती। लक्ष्मी नारायण लास्ट जन्मटा की ब्रह्मा सरस्वती लास्ट जन्मटा लक्ष्मी नारायण। तो बाप भी कहते मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। किनके? ब्रह्मा बाबा 84 जन्मे अंतिम जन्म लास्ट जन्मटार मध्य एसे शिव बाबा प्रवेश करे। तो कोई को डलहेड बुद्धि है, बुद्धि ऐसा हमारा तो क्या है। तो बाबा ने कहा कोई की डालहेड बुद्धि है तो समझते नहीं है। यह तो राजधानी स्थापन हो रही है, बहुत आए हैं फिर चले गए, फिर आ जाएंगे। प्रजा में पाए पैसे का पद पा लेंगे। जरा बाबार हाथ से चले गए, बाबा के भूल बुझे, बाबार घर के भूल बुझे, बाबार बाচ্চাদের के भूल बुझे, तो बाबा बोलছে এরা আসবে অন্তিম সময় এদেরকে আবারও এখানে
আসতে হবে, কিন্তু এসে তারা কোনো পুরুষার্থ করতে পারবে না, তার জন্য তারা প্রজাতে গিয়ে ছোট মোটো একটা পদ পাবে। वो भी तो चाहिए না, সবাই যদি রাজা হয়ে যায় কি করে হবে? সবই তো রাজ্যে প্রয়োজন, ডুম থেকে শুরু করে সব কিছুরই প্রয়োজন, তার জন্য এখান থেকে সবাই হবে, তাদের সবাই একরকম পুরুষার্থ করবে না। তার জন্য বাবা বলে যে কোনো ব্রাহ্মণকে যাতে ফলো না করে, তাহলে পিছিয়ে পড়বে, এগোতে পারবে না। ফলো করতে হলে, কপি পেস্ট করতে হলে। अच्छा, मीठे मीठे सिखला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादाओं को भी याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परमधाम सीधे रास्ते से, फिर आएंगे हंसते हंसते सुखोदम। पॉइंट्स क्या बताया आज? हाँ, याद का चार्ट रखना है और याद करना है, और क्या बताइए? स्थित रहना है, और ये पॉइंट है अलग से, और याद में मस्त रहना है, और हाँ, घर की याद करते हुए बारी माता जी की है सब सब दुआ टानन के हमने। तो नंबर 1 पॉइंट आज का धारणा के लिए मुख्य सार, सदा इसी नशों में रहना है। सदा इसी नशों में रहना है कि हम अभी यह पढ़ाई पूरी कर, हम अभी यह पढ़ाई पूरी कर मनुष्य से देवता, सो विश्व के मालिक बनेंगे। हमारे राज्यों में पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ होगा। उससे कोई छीन नहीं सकता। हाय रिपीट, सदा इसी नशों में रहना है कि अभी हम यह पढ़ाई पूरी कर मनुष्य से देवता, सो विश्व के मालिक बनेंगे। हमारे राज्यों में पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ होगा, उससे कोई छीन नहीं सकता। सेकेंड पॉइंट है, इस पार से उस पार जाने के लिए इस पार से उस पार जाने के लिए याद की यात्रा में अच्छा तैराक बनना है। याद की यात्रा में अच्छा तैराक बनना है। तैराक मीन्स सातारू। नेक्स्ट लाइन, माया के घुटके, घुटके मीन्स विभ्रांत,
माया के गुटके नहीं खाने हैं। अपनी जांच करनी है। याद के चार्ट को